Good morning, students. In this lecture, we will discuss about the structure of spermatozoa. तो मेल गैमेट होता है, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. The structure of male gamete means sperms have a motile structure. Motile structure होता है. इस स्ट्रक्चर बेसिकली डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स. थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं: हेड, नेक एंड टेल. So first we seeing that head is portion, it's flat and oval. ये flat होता है, oval structure है, and having the acrosome. This one, यहाँ acrosome present होता है. acrosome बनता है Golgi bodies से. Golgi bodies play a role into the formation of acrosome. Acrosome contains the hydrolytic enzymes which will be helpful during the fertilization. इसका काम जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करना होता है. न्यूक्लियस हैविंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बिकॉज इट्स ए सेल लाइक स्ट्रक्चर, सो इट्स कवर्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट्स हैविंग ए एक्सियल फिलामेंट इन द सेंटर. दिस वन, दिस रेड वन, दिस इज द एक्सियल फिलामेंट which binds with the tail, जो टेल के साथ जुड़ा हुआ होता है. Now we come to the second portion, neck. Neck is cylindrical, having a large amount of mitochondria. जो zigzag formation बन रखी है, that's the mitochondria. Mitochondria is necessary here for the production of energy because it needs a high energy to be motile. इसको मूवमेंट करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हेयर. प्रोक्सिमल सेंट्रियोल. नाउ द बेस ऑफ द एक्सियल फिलामेंट इज नोन एज द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल. इट्स हेल्प इनटू द फर्स्ट क्लीवेज. जब हम फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज पढ़ते हैं या जाइगोट का डिवीजन पढ़ते हैं तो उसमें इसका रोल प्ले होता है. इट्स प्ले ए रोल इनटू द फर्स्ट क्लीवेज इन द जाइगोट. जो फर्स्ट क्लीवेज होता है जाइगोट का, उसके अंदर ये रोल प्ले करता है. डिस्टल सेंट्रियोल अराइज टेल. नाउ द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कन्वर्ट इनटू डिस्टल सेंट्रियोल एंड अराइज टेल एंड इट प्रोड्यूस ए टेल लाइक स्ट्रक्चर. जो स्टार्ट तो कहाँ हो एक्सियल फिलामेंट से, लेकिन वो डिस्टल सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है. टेल का जो स्ट्रक्चर है दैट्स वेरी लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म. की लॉन्ग होती है, स्लेंडर फॉर्मेशन होती है एंड फॉर्म्ड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इट्स प्ले ए रोल इनटू द मूवमेंट. ये लोकोमोशन में हेल्प कराती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल स्पर्म, सॉरी मेल गैमेट स्पर्म, द स्पर्मेटोजोआ. Now we will discuss about the structure of female gamete. This is the structure of ovum. We know at the time of ovulation it's having the second mitotic phase which is arrested at the metaphase. तो वहाँ वो arrested होता है. The ovum is covered by the corona radiata. Corona radiata is the outermost covering of the ovum. Below the corona radiata, there is another layer is present known as zona pellucida. या zona pellucida. We know that zona pellucida is developed by the during the secondary oocyte formation. The extra layers, the Graafian follicles. During the development of Graafian follicles, it is covered by a cellular granulosa cells. They develop zona pellucida. Inside the ovum, there is a fluid-like substance present known as oolemma, and having a first one polar body and the spindle of second meiotic division. कि spindle formation होती है. That's the structure of ovum. Now we have already studied that the pre-fertilization phase of the human reproduction, the structure of gonads and
the formation of male and female gamete, spermatogenesis and oogenesis, and we have recently studied that the structures of the gametes. Now we will come to the second step, that is fertilization. We know fertilization means fusion of two haploid male and female gametes. कि जो हैप्लोइड मेल गैमेट है दैट फ्यूज विद हैप्लोइड फीमेल गैमेट मीन्स स्पर्मेटोजोन फ्यूज विद ओवम टू फॉर्म ए डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट. कि फर्टिलाइजेशन क्या है? इट्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू एंड रिजल्ट्स इनटू ए डिप्लॉयड सेल दैट्स कॉल्ड जाइगोट. We are studying the structure of human beings. So the site of fertilization, कि fertilization कहाँ होगा? We know in mammals the fertilization take place inside the mother's body. So it's internal fertilization. It take place usually in the ampulla of the fallopian tube. जो ampulla जो होती है fallopian tube के अंदर, oviduct के अंदर, वहाँ fertilization है वो possible होता है. Usually take place into the ampulla of the fallopian tube. ये जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एम्पुला के अंदर होगा. देयर आर द फॉलोइंग स्टेप इन द फर्टिलाइजेशन. द फर्स्ट स्टेप इज रिलीज ऑफ द मेल गैमेट मीन्स इंसेमिनेशन, द प्रोसेस इन विच द मेल डिस्चार्ज सीमन हाई अप इन द फीमेल्स वजाइना. कि मेल पेरेंट जो है या मेल जो है वो अपने सीमन को फीमेल्स वजाइना के अंदर डिस्चार्ज करता है क्लोज टू द कैर्वेक्स ड्यूरिंग कोइटस. कोइटस मीन्स कॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स. कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग द मेल डिस्चार्ज देयर सीमेन इनटू द फीमेल्स वजाइना. फ्रॉम वजाइना द स्पर्म्स पासेज टुवार्ड्स द एम्पुला. नाउ द स्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ देयर टेल, जो हमने भी पढ़ा था कि टेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी की हेल्प से वो वजाइना के अंदर मूव करता है टुवार्ड्स द फैलोपियन ट्यूब एंड फाइनली इनटू द फैलोपियन ट्यूब इट्स रीचेज एट द एम्पुला बाय इट्स ओन एफर्ट एंड विद लिटिल हेल्प ऑफ यूट्रस एक्शन. मोस्टली जो स्पर्म्स की मूवमेंट होती है वो उसकी टेल की वजह से होती है, बट देयर इज ए लिटिल हेल्प ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन. कि जो यूट्रस की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी स्पर्म्स को अपवार्ड पुश करती हैं. So the first step is insemination means release of the male gametes inside the female's reproductive tract, and the gametes, the sperm, move towards the fallopian tube for the fertilization. The most important thing here is that the moment the sperm swims in the uterus, sperms की जो movement करने की जो capacity होती है that's nearly 1.5 to 3 millimeter per minute. The sperm's movement speed that is 1.5 to 3 millimeter per minute. Single ejaculation during the sexual intercourse contains 200 to 400 million sperms. There is a huge, very huge amount of the sperms are released inside the vagina and only few reaches at the fallopian tube. This action, the reducing the number by their sperms is not capable to move, and the vagina phagocytic action engulfs the sperms. Extension of cervix into vagina push the sperms upward. जो cervix की जो extension है inside the vagina वो sperms को upward towards the fallopian tube push करती है. So this is the process by which the sperms enters into the female vagina and move towards the upward or towards the fallopian tube. We have studied the first point is insemination, release of the male gametes. Now we need the second gamete, that is the female gamete. The female gamete, the egg, is released by the mature Graafian follicles of an ovary is received by the near fallopian funnel.
कि जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं एट मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल द प्रोसेस ओवुलेशन टेक प्लेस एंड द एग इज रिलीज्ड बाय द ओवरी बाय ईच ओवरी एट द वन टाइम, कि एक ओवरी एक टाइम पे रिलीज करेगी, सिंगल एग इज रिलीज एंड द एग रिलीज नियर द फैलोपियन फनल एंड द फैलोपियन ट्यूब कंटेन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज fimri and their cilia. With the help of fimri and cilia, they collect the egg and move to inside the fallopian tube. We know that the oocyte at the time of ovulation, the oocyte is secondary oocyte, can live up to only 72 hours, but can be fertilized only during 24 hours of this period. कि जो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो 24 आवर्स के लिए होगा, बट दे कैन बी सर्वाइव अप टू 72 आवर्स, कि वो 72 आवर्स के लिए सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कैपेसिटेशन, कि नाउ वी हैव द बोथ द गैमेट्स, नाउ वी एक्टिव द स्पर्म्स, वी एक्टिवेट द स्पर्म्स फॉर द फर्टिलाइजेशन, दैट्स नोन एज कैपेसिटेशन. The third step, capacitation. The sperms in the female genital tract are made capable of the fertilizing the egg by the secretion of the female genital tract. कि जो female genital tract होता है, they release some secretion which makes the sperms for capable the fertilization. The secretion of female genital tract remove the extra deposition, कि जो स्पर्मेटोजोआ के सरफेस के साथ जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन होती है उसको रिमूव कर देती हैं. एंड फ्रॉम द सीमेन नाउ द स्पर्मेटोजोआ इज फ्रीली present in the female tract. They do not have covered by any kind of deposition which give them protection towards the medium of the vagina. This is known as capacitation. The next step is chemical and physical changes during the fertilization. What are the chemical change and what are the physical changes are occurs? The next step is the most important point, chemical and physical event of the fertilization. कि fertilization के during क्या chemical और physical event आते हैं. अभी तक तो हमने अभी पढ़ा है that is first step insemination के release of the male gametes. Second one is arrival of the egg by the ovary, and the third one is capacitation. Now the fourth step is chemical and physical event of the fertilization. The first event is acrosome reaction. We have studied that the nucleus of the sperm covered by the acrosome, क्यों acrosome से cover होता है. We know that हमने अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ा है ओवम का, फीमेल गैमेट का, we know that it is covered by the two membrane. First one is zona pellucida and the corona radiata. The ovum या सेकेंडरी oocyte जो है वो दो मेम्ब्रेन से कवर होता है, zona pellucida and corona radiata. The sperm which is capacitated means which is activated or which is free from the extra deposition by the female vaginal secretion now passes through the corona radiata to reach the zona pellucida. कि जो आउटर मेम्ब्रेन है एक्रोसोम की हेल्प से जो स्पर्म है वो सेकेंडरी oocyte की आउटर लेयर दैट्स नोन एज कोरोना रेडिएटा को पास आउट करता है, उसको ब्रेक करता है, एंटर्स इनसाइड द सेकेंडरी oocyte एंड रीच एट टू द जोना पेलुसिडा. This is the diagrammatic representation by which a sperm enters into the ovum. This is the structure of sperm having the acrosome vesicles. This is the zona pellucida. This is the plasma membrane. This one is zona pellucida and the follicle cells and the
corona radiata cells. First, the sperms enters into the corona radiata and pass through it and finally reach at to the zona pellucida. At the zona pellucida, the sperms acrosomal vesicles release लाइटिक एंजाइम्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा की सेल्स हैं वो रैप्चर हो जाती हैं. दे विल बी डाइजेस्टेड एंड इन द थर्ड स्टेप द स्पर्म्स एंटर्स इनटू द जोना पेलुसिडा एंड रीच एट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ओवम. कि जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस तक वो पहुंच जाता है बाय द पासिंग इन थ्रू विद द जोना पेलुसिडा. वो जोना पेलुसिडा को पास करके विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन की जो एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से मेम्ब्रेन को पोरस बनाते हैं एंड एंटर्स थ्रू इन इट. नाउ द एंजाइम्स रैप्चर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज द स्पर्म न्यूक्लियस and they release the sperm nucleus inside the oolemma. जो सेकेंडरी oocyte का जो प्रोसेस जो प्लाज्मा था उसके अंदर स्पर्म्स को अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर देता है. एट द टाइम ऑफ द रप्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ही कोई स्पर्म जोना पेलुसिडा को के साथ कनेक्ट होता है या उसको एंजाइम्स की हेल्प से डायलिसिस कर रहा होता है, एट दैट टाइम द ओवम covers it by a membrane to prevent the entry of the another sperms. कि कोई भी another sperms है वो एंट्री ना कर पाए, सिंगल फर्टिलाइजेशन हो, उसको फॉलो करने के लिए इट्स कवर्ड बाय मेम्ब्रेन एंड द स्पर्म्स डू नॉट एंटर विद इट. So this is about the how the sperms enters into the ovum. The zona pellucida release ZP3, a type of glycoprotein, receive the sperms and bind the complementary molecules of the sperm head to result in the activation of acrosome. कि एक्रोसोम कैसे रिलीज करता है कि एक्रोसोम पहले एक्टिवेट होगा व्हेन इट्स द केमिकल सिग्नलिंग, इट्स द केमिकल, ये तरह का केमिकल बॉन्डिंग होती है जिसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि द स्पर्म्स विच आर गोइंग टू बी फ्यूज इट्स द सेम काइंड, कि वो सेम ह्यूमन मेल गैमेट है या नहीं है. तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जोना पेलुसिडा के वो स्पर्म्स के साथ बाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एंड द स्पर्म्स हेड विच कंटेन्स एक्रोसोम रिजल्टिंग इनटू द एक्टिवेशन ऑफ द एक्रोसोम, कि एक्रोसोम एक्टिवेट हो जाएगा. नाउ एक्रोसोम रिलीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स नोन एज स्पर्म लाइसिन्स, कि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं. They are the following hydrolytic enzymes which help in this process. The first one, hyaluronidase, hydrolyze hyaluronic acid of the follicular cells, कि ओवम के नियर बाई जो रैप्चर्ड फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं. सेकेंड है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, कि कोरोना रेडिएटा को डिजोल्व करती हैं. ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो कोरोना रेडिएटा है उसके सेल्स को डिजोल्व कर देते हैं. एंड द जोना लाइसिन एट्स इट्स नेम जोना फॉर जोना पेलुसिडा, इट डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा विच इनेबल्स द स्पर्म्स टू रीच एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग. अभी रिसेंटली हमने स्ट्रक्चर में जो देखा था कि वहाँ स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, पहले कोरोना रेडिएटा को पास आउट किया जाता है, फिर जोना पेलुसिडा को, और उसके बाद इट द स्पर्म्स हेड रीचेज एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग, कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एग तक रीच कर जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स. नाउ at the time of the when the sperm had reached at to the egg, the egg show a cortical reactions, corticoids reactions होती हैं, cortical reaction होती है to check the another sperm's entry, कि the cortical action at the time at the very high speed immediately check the another sperms,
कि क्या कोई इसके इस स्पर्म्स के अलावा भी कोई अनदर स्पर्म्स तो नहीं है जो जोना पैलूसिडा को पास आउट कर रहा हो। इन दिस प्रोसेस एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज विद द कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इसमें कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं टू हार्ड द जोना पैलूसिडा, और वो क्या करेंगे, जोना पैलूसिडा को हार्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से कोई अनदर स्पर्म्स है वो एंट्री नहीं करेगी। टू प्रिवेंट पॉली एम्ब्रियोनी, कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो ना बने, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ही कोई स्पर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है, इट रिलीज सम कोर्टिकल्स विच फ्यूज विद जोना पैलूसिडा एंड मेक ए हार्ड कवरिंग अराउंड द ओम, कि वो ओम के जो सेकेंडरी साइड है उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है। दैट्स नोन एज ए कोर्टिकल रिएक्शंस टू प्रिवेंट द पोलीएम्ब्रियोनी। The next step is sperms entry. We know that the sperms have reached at the plasma membrane. Now, the egg extend around the entering sperms finger-like process called microvilli. कि जो माइक्रोविलाई फिंगर-लाइक प्रोजेक्शन होता है एग का, वो स्पर्म्स के चारों तरफ स्पर्म्स हेड को कवर कर लेती हैं, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं विच गोइंग टू द फर्टिलाइजेशन, कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए कोन बना देती है। दैट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन कोन। द डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म्स, देखो हमने पढ़ा था कि स्पर्म के अंदर डिस्टल सेंट्रियोल होता है, विच द जो एक्सियल फिलामेंट था वही डिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑफ द स्पर्म डिवाइड इनटू फॉर्म द टू सेंट्रियोल, अब जो सेंट्रियोल है डिस्टल सेंट्रियोल वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म द टू सेंट्रियोल, बिकॉज एग डू नॉट हैव इट्स ओन सेंट्रियोल, क्योंकि एग का अपना खुद का सेंट्रियोल नहीं होता, इसीलिए माइटोटिक डिवीजन जो है मियोटिक डिवीजन जो है वो रुक जाता है वहाँ। जब दो सेंट्रियोल बन जाएंगे तो द मियोटिक स्पिंडल फॉर द सेल डिवीजन, नाउ द सेल डिवीजन टेक प्लेस, द सेकेंडरी oocyte कैन बी अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म ए हैप्लॉइड फीमेल गैमेट एंड पोलर बॉडी। नाउ वी नो दैट हमने जो oogenesis में पढ़ा था कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना मियोसिस सेकेंड के फेज को कंप्लीट कर लेती है। द स्पर्म स्टिमुलेट द एग टू कंप्लीट मियोसिस सेकेंड, अब जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड मैच्योर ओवम एंड वन पोलर बॉडी। एट दिस टाइम द हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ, अब जो हेड है स्पर्मेटोजोआ का विच कंसिस्ट द हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल पीस, की जो हेड पोर्शन है वो नेक और टेल से सेपरेट हो जाएगा एंड नोन एज मेल प्रोन्यूक्लियाई। इसके हम उसको क्या कह रहे हैं, मेल प्रोन्यूक्लियाई, कि वो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ हेड पोर्शन रह जाता है, बाकी जो टेल एंड नेक रीजन होता है वो डिसोसिएशन हो जाएगी एंड द क्रोमोसोम ऑफ द ओवम इज नॉट ऑर्गेनाइज इनटू द न्यूक्लियस। अब हमें बताया कि ओवम का जो स्ट्रक्चर है या ओवम के जो क्रोमोसोम्स है वो न्यूक्लियाई के अंदर अरेंज नहीं हुए हैं, इट्स जस्ट कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस सेकेंड, सो नोन एज फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। नाउ क्रोमोसोम्स ऑफ द स्पर्म, देखो फीमेल के तो पहले से ही फ्री हैं, और जब हेड पोर्शन में से वो रिलीज हो जाते हैं तो मेल के भी क्या हो जाते हैं, फ्री, दे आर आल्सो नाउ फ्री एंड बोथ सेट ऑफ द क्रोमोसोम अरेंज ऑन द सेंट्रियोल, कि जो डिस्टल सेंट्रियोल जो था जिस जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, क्योंकि एग के अपने खुद के सेंट्रियोल नहीं थे, तो अब क्या होगा कि जो डिस्टल सेंट्रियोल थे वो एग के अंदर अरेंज हो गए, और जो बोथ सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन द सेंट्रियोल इन द स्पिंडल फॉर्मेशन। Now the chromosomes of the spermatozoa mix with the chromosomes of the female gamete and it's known as karyogamy,
means fusion of the nuclei. Now the male gamete and the female gamete fuse to form a single cell zygote, that is diploid. That's the zygote. No nuclear envelope around the chromosomes as they are already double. Each consists two chromatids and the zygote is ready to first cleavage. कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती है क्रोमोसोम्स की, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी, क्योंकि वो पहले से ही डबल हो चुके हैं. इच कंसिस्ट टू क्रोमेटिड्स, सभी के पास अपनी दो क्रोमेटिड्स होती हैं. एंड द जाइगोट इज नाउ रेडी टू द फर्स्ट क्लीवेज. अब जो जाइगोट जो है वो फर्स्ट क्लीवेज के लिए रेडी होता है. एंटर द स्पर्म, जैसे ही स्पर्म्स में जैसे ही स्पर्म एग के अंदर एंट्री करता है, स्टार्ट मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी जाइगोट के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्शंस है वो परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज बी डिटरमाइन, कि डिटरमाइन कैसे होता है. वी नो दैट इन द ह्यूमन बीइंग दे आर द 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स, 22 पेयर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स विच आर हेट्रोजिनस, विच आर डिफरेंट. ये दोनों अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फादर के अंदर एक्स एंड वाई, एंड फीमेल के अंदर यानी मदर के अंदर एक्स एंड एक्स. तो ऑटोसोम्स आर द सेम बट द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द वाई क्रोमोसोम ऑफ द मेल, कि जो वाई क्रोमोसोम होता है उसकी वजह से. इफ द एक्स ऑफ फादर फ्यूज विद एक्स ऑफ द मदर it will be a daughter, and if the Y of the father fuse with the X of the mother, it will be a son. So the possibility of the son and daughter is half. It's 50-50, 50% may be son or 50% may be daughter. So basically the sex determination is done by the sex chromosomes which having Y this is all about the fertilization. Now in next lecture we discuss about the metabolism and zygote, means division of the zygote and implantation into the female uterus. This all process fertilization take place in the ampulla of the fallopian tube. Now the zygote undergo division and move towards the uterus.